एयरपोर्ट ये वाला जो इस्लामाबाद का कंसीव हुआ अराउंड 2007 एंड डिज़ाइन कंसल्टेंट्स वर सिलेक्टेड। सो जो टर्मिनल बिल्डिंग के डिज़ाइन कंसल्टेंट हैं वो CPG है फ्रॉम सिंगापुर। उनके जो लोकल पार्टनर्स हैं पाकिस्तान में, दैट इज़ अ कंपनी कॉल्ड ARCOP led by Mr. Yawar Jilani. So they designed the entire terminal building and allied facilities inside the terminal building. We see various airports of the world, and particularly in Asia, we've seen in the recent past that countries showcase their culture, their art through museums and airports. So we thought of this, we took this idea to the Civil Aviation Authority Pakistan, and we were very happy that they received it immediately. Architecturally, it is entirely a different theme. It has very less brick and mortar component. The theme which was set by the designers was a gateway theme. As you see, the facade of the building also with a big steel structure, uses of natural light and openness in the terminal building. There's a lot of flow. They can go anywhere and shop around in duty-free shops and restaurants. So in that way, it is entirely different from two other major airports in Pakistan, that is Karachi and Lahore. We spoke to people like Mrs. Bilgrami and people like Nazish Ataullah, and others were brought in. We've got a great legacy of art, heritage, our arts and crafts. So all of these things really were brought together, and then really it was the magic of Mrs. Bilgrami and my partner Mehboob who made it happen. ARCOP approached me. That's a very large architectural firm. Yawar Jilani and Mehboob as his partner, to curate the art work for the Islamabad International Airport. And it's a fabulous, large, contemporary glass structure, and I was quite awed by the presence. The architects had already worked in their planned areas which would be earmarked for artwork. The idea was that we also not only have the fine artists, but I propose that we also have traditional craftsmen and their work given the same importance and the same platform, and can we not mix and have a blend of the traditional crafts and the fine arts. There are 15 gates, and all gates have their independent departure lounge. So a dedicated departure lounge, when a flight is announced, they can proceed to their own aircraft through passenger boarding bridge. So we have placed one big art piece of similar size in each gate, so people can sit, relax and look at the artwork. Medium was basically our curator, very renowned personality, Madam Noor Jahan, decided, but we wanted to have variety. So we have something in metal, some tile work, some kashi work. So probably we have representation of all the artwork going on in Pakistan and from all the areas of Pakistan also. So amongst the areas that were assigned, there are also 7 gate panels, gateways, the large panels which are about 24 feet in height and about 12 feet in width. That's quite a large, substantial space where we decided to have crafts from every province to be depicted there and under one roof. ऑलमोस्ट सारा ही बाय हैंड हो रहा है, कटिंग से लेके जो बीटिंग है वो सारा हैमरिंग वगैरह वो सारी हाथ से ही हो रहा है। मशीन वाला मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रोसेस इसमें है। रिबिट से हम उसको जोड़ें, सारा टेक्सचर भी बीटिंग से ही है। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिल के एक बर्ड बनते हैं। टाइम कम था, 100 बर्ड्स, और एकदम वो लगा कि नहीं हो सकता, मगर फिर जब वो फ्लो में आए तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा काबू में आ गया। अब मज़ा आ रहा है और अब इंतज़ार है कि वो इन बर्ड्स को वो फ्लाइट मिले एक।
मेरा चाचा जी करते थे पहले, उन्होंने सीखा है पहले काम, उसके बाद मैंने ये शौक़ तो मुझे पैदा हुआ देख के उनको कि वो करते थे काम, तो मैं उनके पास जाता था। तो मैं टाइलों के ऊपर सफ़ेदी लगा के तो उसके ऊपर खाका झाड़ के तो ये मैं काम करता था सिखलाई का। तो उसके बाद मस्जिद वज़ीर खां का शुरू हो गया, तो वहाँ मैंने 18 साल काम किया। मतलब सुबह जाता था, शाम 5-6 बजे तक मैं ये काम करता था, उस्तादों की खिदमत भी करता था, रंग शेक भी बनाता था, खुद ही बना के देता था। तो ये मैं सीखता भी था साथ साथ काम। 40-50 साल मुझे हो गए हैं ये काम करते हुए। तो अब मेरे बेटे भी जो हैं वो भी 4 करते हैं, 4 बेटे हैं, एक दामाद है मेरा वो भी करता है। तो ये सारे मेरे से सीखे हैं। जैसे ये काम हो रहा है एयरपोर्ट का, तो ये उन्होंने डिज़ाइन हमें दे दिया, तो इसको मैंने बड़ा खुद ही किया है डिज़ाइन करके, तो इसी जगह के हिसाब से तो इसको ऊपर हमने रिपीट किया है। पहले हमने प्लस्तर हुआ था इसके ऊपर, बाद में हमने लैम्प लगाई है खुद ही, कड़ा उसका गीले लगा के उसके ऊपर हम फ्रेस्को कर रहे हैं। तो कलर हमारे जो जितने भी हैं ये वाटर कलर हैं, ये वो पुराना हमारा तरीक़ाकार है, उसी तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। मेरी तकरीबन जितनी ज़िंदगी गुजरी अब तक ये मैंने इसी काम में अपने हाथ से भी करता हूँ, तो शागिर्दों से भी करवाता हूँ। तो ये बच्चे जो हैं इनको भी जो यही तरबियत दे रहा हूँ भाई इसको सीखें, ड्राइंग भी सीखें और पूरा काम सीखें। मेरे के बाद ये आपने ये काम चलाना है, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे तो आप चलाएँ इस काम को। Internationally renowned artist Aisha Khalid was approached to do one of the large murals, 200 feet long mural, and she has painted verses from Quran which are recited when you're embarking on a journey. She has worked with gold leaf on the Kufic script, and all the gold lines are like depicting your travel, and the vortex, the 8-folded geometric pattern that you see shows motion. The brilliant colors that she's used right through, and it's quite a feat. So I think the most challenging thing was that how to incorporate or conceptually linked the Islamic calligraphy with my own personal painted vocabulary or narrative. So I chose Surah Qadr for this. I had a very strong connection with this verse because this verse is about the power of night. As a child in school, so this was the first verse which I learned by heart. So I think there was a strong connection when I was making it again for this mural because I found it quite appropriate for that space. So the airports are for traveling, they are about the sky, they are about the idea of the energy or metaphor of energy traveling in the space. And the way I have designed it, so these are 100 pages of some book which has been unfolded and they are installed in the form of a very long painting. The color palette, the way I use gold in it in a massive scale and in a massive form. I think the idea was to achieve the sensibility or the aesthetics of Islamic manuscript in Mughal miniature paintings. So there is a kind of very strong sense of movement in it, very strong sense of traveling in it, and a very strong sense of energy in it. चूँकि काम जो मैं कर रहा था, जो चीज़ें डेवलप कर रहा था, वो सारी यहाँ से ही निकल रही हैं, इसी मिट्टी से हैं। हड़प्पा की जो साइट्स हैं वो मैंने विज़िट करना शुरू की हैं, तो मैं उन साइट्स को जब विज़िट करना शुरू किया तो वो एक पॉइंट फिर मुझे हुआ कि अच्छा मेरे लैंडस्केप भी यहाँ से शुरू करना है। अब वो जब आप ऐसी किसी साइट को विज़िट करते हैं तो पोट्री शार्ट जब उठाते हैं और उस पर आप देखते हैं जो क्राफ्टमैन जिसने बनाया है उसके फिंगरप्रिंट्स ऊपर लगे हुए हैं, तो वो जो एक तरह का टाइम ट्रैवल का एक तरह का कोड है कि आप हज़ारों साल पहले के थंब प्रिंट किसी के लगे हुए हैं जिसने बनाया, आप उसको पकड़ा हुआ है कि एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो आपको कहीं और ले जाता है। उस टाइम की बात नहीं हो रही जहाँ पे आप खड़े हैं, वो किसी और टाइम की बात हो रही है। तो वो जो कहानियाँ दिमाग बुनना शुरू करता है, तो वो आई थिंक मेरे लिए एक था कि मैं जब लैंडस्केप बनाऊँगा तो उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट यूज़ करें, ऐसी बाकियात यूज़ करूं इन्हीं जगहों की जिससे दिमाग कहानियाँ बनाए, चीज़ों को मिला के एक कहानी क्रिएट करें।
तो ये लैंडस्केप वहाँ से निकला है। हमारे बुज़ुर्गों ने कोशिश की कि यहाँ के जो फूल हैं, यहाँ के जो रंग हैं, उसकी शनाख्त को आज तक ज़िंदा रखें। इसमें हमारे बुज़ुर्गों की ये बड़ी काविश रही कि उन्होंने फ़न आगे सिखाया। ये जो आप डब्बे पे वो कदीमी 200 साल पुराना काम देख रहे हैं, उसको कोशिश की है कि हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पैनल पे लाए हैं, ताकि ये जो फ़न जो सदियों पुराना यहाँ की पहचान है मुल्तान पाकिस्तान की, वहाँ एयरपोर्ट पे लगे और दुनिया देखे कि माशाल्लाह हमारा फ़न अभी तक कितना मिनचोर अच्छा जा रहा है, जो सीना बसीना सदियों से आ रहा है। आप कह सकते हैं मौजूदा दौर के अंदर इतनी बड़े लेवल पे और दस्तकारों का फ़न एक छत के नीचे लाना बहुत मुश्किल था, और कोशिश की गई कि वो पुराने तरीके से, जो पुराना तरीका ख़त्म हो चुका है, उसको दोबारा ज़िंदा लाया गया। यानी एक म्यूज़ियम है जो आजकल के दस्तकारों ने एक तख्लीक किया। देखें जी, कोई फ़न भी उस वक्त तक ज़िंदा रहता है जब उसको कराने वाले और करने वाले शौक़ रखते हो ना। तो ये एक अच्छी काविश है कि जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हमारे कदीमी फ़नून को अवेज़ा किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये फ़न ज़िंदा रहें। जो है मज़ार इसका शाहरुख आलम का, ये भी बहुत खस्ता हाल हो गया था। 1972 में काम हुआ था इसकी रिपेयरिंग का, वो भी फिर मेरे वालिद साहब ने, वो हमने मिल के ना वो काम किया उधर। हम ये काशीगरी का काम करते हैं। इससे सबसे पहले मिट्टी का हमें चाहिए होता है। मिट्टी जो हम लाते हैं ये दरिया की मिट्टी होती है, हमारे साथ ही है दरिया चनाब, तो वहाँ से जो है ना हम ये मिट्टी लाते हैं। ये मिट्टी ऐसी होती है जहाँ दरिया बहता हो, इनके एक होता है ना, दरिया बहता होता है वो जगह छोड़ देता है, आगे दूसरा रुख कर लेता है, वो मिट्टी जो होती है वो चिकनी मिट्टी कहलाती है। वो मिट्टी जो है ना चिकनी हमारे काम आती है। फिर 3 दिन के लिए भिगो के रखते हैं ताकि वो बिल्कुल नरम मुलायम हो जाए। उसके बाद जो है ना फिर इसको हाथों से मदद से इसको मसलते हैं ताकि बिल्कुल मुलायम हो जाए, नरम हो जाए। फिर इसकी जो भी चीज़ बनानी, जैसे ये जाली बनानी है, इसका एक साइज़ का हम ये एक नीचे मिट्टी डाल देते हैं, तो फिर इसका एक कागज़ बना लेते हैं उसके डिज़ाइनिंग का। फिर कागज़ के ऊपर जो जो सुराख या जाली बनानी है, इसको औजारों से सुराख निकाल लेते हैं। जब ये सूख जाता है फिर इसके ऊपर हम अस्तर की एक तह होती है वो चढ़ाते हैं, इसके ऊपर गलेज करते हैं। जो शीशा होता है पीसा हुआ, बहुत बारीक पीस हाथों से इसके ऊपर शीशे चढ़ा के फिर इसको भट्टी में डालते हैं। तो उसके जो कलर होते हैं इसके, हमारे वो नीला और फिरोज़ी जो कलर है, एक पुराने 2 कलर हैं। उसके बाद ये ऊपर से वो गलेज पिघल जाता है, इसका जो कलर होते हैं वो भी महफूज हो जाते हैं। मैं ये काम तकरीबन जब से होश संभाला है, और अब्बू के साथ वैसे ठक ठुक करते थे पहले, लेकिन फिर आस्ता आस्ता सीख भी लिया। पहले मेरे दादा करते थे, फिर मैं अभी भी करते हैं, शुरू से भी करते हैं, अभी मैं करता हूँ। ये तकरीबन यहाँ से कुछ 15-16 किलोमीटर दूर है जगह जहाँ से ये पत्थर निकलता है, और ये से पहाड़ की चोटी पे निकलता है, और पूरे पहाड़ में किसी जगह नहीं है, सिर्फ एक चोटी में एक जगह मुख्तस है, वहाँ से सिर्फ निकलता है। तो वहाँ से पहले सरों पे लाते हैं जहाँ तक ट्रैक्टर जाता है, फिर वहाँ से ट्रैक्टर पे रख के यहाँ पे लाते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी जगह है और उसमें क्या बनाना है, तो उस हिसाब से फिर जितने हमने, अगर कोई बेल बनानी है, जिस तरह कि ये पीछे पत्थर खड़ा है तो ये 7.5 इंची है, तो इसके हिसाब से फिर हमने उस बेल के ऊपर कागज़ पे बनाते हैं। हम कागज़ पे बनाने के बाद हम उसको एक्सरे पे बनाते हैं। एक्सरे में फिर काट लेते हैं, उसका स्टेंसिल बना के फिर उससे आगे चलाते रहते हैं, पूरे पत्थर को उससे बनाते रहते हैं। धूप हो, बारिश हो, जिस चीज़ में हो, तकरीबन सन 1800 की कब्रें भी यहाँ पे हैं हमारे कब्रिस्तान, इसी पत्थर की बनी हुई। आज भी देखें तो लगता है कि अभी किसी ने बना के लाई है।
One of the gate panels is devoted to Makli and Chaukhandi, and we've got the craftsmen who have worked very, very intricately to a layer of almost 3 layers depth of carving, depicting all the old designs and patterns that you find in Makli and Chaukhandi. सबसे मज़े का एक पैनल है जो मेरे ख्याल से एक 300 फुट और फिर 600 फुट, तकरीबन 900 फीट ये हमारे लगेज जहाँ हमारा पूरा सामान आता है, वहाँ पूरा पीछे जो है हम ट्रक आर्ट हुआ है। ट्रक आर्ट दुनिया भर में, पाकिस्तान का ट्रक आर्ट बहुत मशहूर हुआ। अलग अलग सूबों में ट्रक आर्ट अलग टेक्निक से किया जाता है, तो यहाँ पर यही था कि हम सबको एमैलगमेट करें। सारे यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट, मेरे ख्याल से कोई 25-30 कारीगर मिलके इसके ऊपर काम किए हैं, और हर जगह का उन्होंने अपनी जो खासियत थी, चमक पट्टी है या फिर उसको टिन के साथ बैठ के उसको कर रहे हैं या लकड़ी का है, वो सब यहाँ पर आपको मौजूद नज़र आएगा। The reactions have been extremely positive. I think many a times they forget about the technicalities of this superb airport, which really is, a showcase of international travel as it is. They forget that bit, and they just remember the arts and the crafts which they see, because that is something that image hopefully will be a lasting image with them. It's going to be important for other architects and designers to start utilizing the traditional crafts in their own work. We've got countries like Morocco, it's a government policy to utilize the traditional crafts as building material. So if we could start doing that, all the crafts that are dying away, which is really such an important, rich heritage of ours, will not disappear. But it's extremely relevant that all the patterns which are very old, going down centuries, can still stand and be relevant now. So I think it's our responsibility to start giving them that space and that respect that they deserve.